All right. So yes, I was talking about how to go about your dissertation. तो मैंने आपको बताया कि easiest टॉपिक्स क्या होते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस, जिसमें हम दो ऑथर्स को लेके जो सिमिलर सब्जेक्ट्स पे लिखते हैं उनको लेके हम एक कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने कोई पंजाबी ऑथर ले लिया और एक मराठी ले लिया, पर दोनों की कंसर्न सिमिलर हैं, तो हम उसको कंपैरेटिव स्टडी बोलते हैं। दूसरा है रिप्रेजेंटेशन वाला, जैसे आप कोई भी टेक्स्ट लेके उसमें आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेमेन की बात कर सकते हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ चिल्ड्रन की बात कर सकते हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फार्मर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ दलित्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओल्ड पीपल, it could be anything. Representation of nature can also be one of the topics. So this you can see, आप कोई भी text, जैसे you pick up a text, you read a novel or a short story and you feel that this is a text about women or about old people. You might have read this Russian Anton Chekhov की एक short story है where this old man, grief, I think the title of the story is Grief. So this is a story about old people and how this person, he wants to talk about his emotion but he doesn't find anyone. जो भी, and he is in a way rickshaw puller sort of, and then none of the passengers, they are interested in listening to his story. So in the end of the story he would tell his grief, his sad story to the horse, that is pulling its carriage. So this is how it is. So then you can talk about how old people feel, or how Anton Chekhov represents old people, or about human emotions, universality of human emotions. For example, you can take up some Punjabi text where you find similar kind of concerns, है ना। तो इस तरह से हम comparison करते हैं। तो representation और comparison, ये दो हम issues पे based हम सारे जो अपने dissertation है वो बनाएंगे। जो लोग खुद बना सकते हैं इट्स फाइन, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा टॉपिक डिसाइड करना, वो मुझसे बात कर सकते हैं फ़ोन पे। ठीक है, सो पहली चीज़ हमने क्या करनी है, आफ्टर डिसाइडिंग योर टॉपिक आपने काम करना है इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट ब्रीफली अबाउट द ऑथर, जिसकी कहानियों पे आप काम, जिसके नॉवल पे या जिसकी पोइट्री पे आप काम करना चाहते हो। अगर आपने कंपैरेटिव स्टडी करनी है तो ऑब्वियसली आपके पास दो ऑथर्स होंगे, तो हम उन दोनों के बारे में अपने इंट्रोडक्शन में ब्रीफली लिखेंगे कि वो कौन है, उनकी ब्रीफ बायो और उनके जो वर्क्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लिखेंगे, है ना, लाइक 1.5 पेज। देन वी विल टॉक अबाउट द वर्क्स दैट वी आर गोइंग टू सिलेक्ट, that we have selected for our dissertation. For example, अगर आपने जैसे पेंसी कह रही थी कि मार्गरेट एटवुड का उसको नॉवल अच्छा लगा हैंडमेड्स टेल, तो आप पहले जैसे लिखोगे मार्गरेट एटवुड के बारे में, हु इज शी, और उसकी जो ब्रीफ बायो, और उसके बाद उसने कितने नॉवल या शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस लिखी हैं। उसके बाद आप लिखोगे दैट आई एम गोइंग टू सेलेक्ट मार्गरेट एटवुड्स हैंडमेड्स टेल बिकॉज ऑफ इट्स feminist concerns. And now, for example, if you are doing a feminist study, fancy, just I'm citing an example, right? And then you would write about your research methodology. After giving an introduction to the author, you would talk about your research methodology. If you are doing a feminist analysis, you would say that this is going to be, I'm going to use feminist theories, ठीक है, and proposed by various feminist critics. अगर आप कोई specific feminist critic को यूज़ कर रहे हो, जैसे मैंने जो MPhil में अपना dissertation लिखा था, that was a feminist study of George Eliot's Mill on the Floss, and I had particularly used Simone de Beauvoir's text The Second Sex. So if you are using one particular feminist critic, you would mention that I'm going to use the theories proposed by Simone de Beauvoir, है ना। और if you are using more than one, then you can write their names and the concept that you are going to use from that theory, ठीक है। After that you can talk about secondary text that you are going to use,
है ना, अपनी प्राइमरी टेक्स्ट बता दिया कि मैं हैंडमेड्स टेल यूज़ कर रही हूँ, एंड देन यू हैव ऑल्सो टोल्ड अबाउट द थियोरी दैट यू आर गोइंग टू यूज़ योर रिसर्च मैथडोलॉजी, है ना, और आप उसमें ये भी लिखोगे रिसर्च मैथडोलॉजी में दैट इट इज़ गोइंग टू बी कंटेंट एनालिसिस, ठीक है, क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस, क्योंकि हम जो लिटरेचर के डिपार्टमेंट में जो रिसर्च करते हैं वो क्वालिटेटिव स्टडी होती है, हम डाटा लेके उसको कैलकुलेट वगैरह नहीं करते हैं, वो क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटी के बेसिस पे आप अजम्पशंस बनाते हो, पर हमारा जो होता है वो होता है क्वालिटेटिव, ठीक है। Quality means the style and content of the text. On that basis, we determine our findings, right? So, and it is going to be content analysis. On the basis of the text that is given, you make your assumptions, you make your conclusions. All right. And this is all that's going to be there in your introduction. ठीक है, अब 2 चैप्टर्स हमने बनाने हैं। अगर कंपैरेटिव स्टडी है तो पहले जैसे चैप्टर में हमने पहले ऑथर की बात कर दी कि वो जैसे औरतों को कैसे प्रेजेंट करता है या दलितों को या किसी को भी, है ना, और दूसरे में हमने दूसरे ऑथर की बात कर दी और एंड पे हमने कंक्लूजन में लिख देना है कि दोनों में हमने ये सिमिलैरिटीज़ देखी हैं और ये डिफरेंसेस देखे हैं, सिंपल। अगर हम एक ही ऑथर को लेके कर रहे हैं तो हम उसके 2 चैप्टर्स बनाएंगे। पहले में हम उसमें जैसे ये दिखा दे, अगर हमने फेमिनिस्ट एनालिसिस करना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन कैसा है, और दूसरे में हम अपनी ऑब्जर्वेशन जो है, आपका क्रिटिकल असेसमेंट क्या है उस ऑथर का, कि आपको ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स फेमिनिस्ट थियरीज कि आपको क्या लगता है कि वो जो है उसका जो लेंस है वो एंटी फेमिनिस्ट है या फेमिनिस्ट है ना, किस तरह की वैल्यूज़ को वो जो ऑथर है वो जस्टिफाई करता है। वो साथ साथ में मैं आपको गाइड करती रहूँगी जैसे जैसे आप लिखोगे, डिपेंड करता है आप कौन सा ऑथर ले रहे हो, कौन सा टेक्स्ट ले रहे हो, है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर डिसर्टेशन राइटिंग। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट वंस यू स्टार्ट राइटिंग थिंग्स सेटल। जैसे भी आप मुझे लिख के भेजा करोगे मैं उसमें आपको सजेशन दिया करूँगी, कुछ ग्रामेटिकल एरर्स हैं या आइडिया वाइज मुझे कुछ लगेगा कि गलत है, इसको रीफ्रेम करना है, दैट विल कीप ऑन सजेस्टिंग यू, ठीक है। अब आप मुझसे बात कर सकते हो, वट एवर यू हैव इन योर माइंड। वी कैन स्टार्ट विद पेंसी, यू कैन unmute and let me know what do you think of your topic, because this is high time we'll have to decide our titles now, our topics now. Yes ma'am, just read a little more and I'll decide and I'll let you know. हाँ, within a day or 2 you should do it, okay? Don't take longer. Yes, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जैसे पिछली बार भी एक बच्चा था वो कहता मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो हमने उसको भी कहा कि आप साइंस फिक्शन का देखो, तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड ही हैड टेकन, उसमें डिस्टोपियन, उसको एज ए डिस्टोपियन फिक्शन ही हैड डिस्कस्ड, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि Yes, आपने ma'am. बहुत ही ज़्यादा इस पे वो लगाना है, पर चलो ठीक है, यू डिसाइड एट द अर्लीस्ट एंड लेट मी नो, ठीक है। Yes ma'am, sure ma'am. हाँ, क्योंकि आप साइंस फिक्शन भी ले रहे हो तो आप उसमें कौन से एंगल से, जैसे उसने डिस्टोपियन फिक्शन डिस्कस किया ब्रेव न्यू वर्ल्ड को, तो आप अगर ये भी सोचो साइंस फिक्शन ले रहे हो तो आप उसको किस एंगल से स्टडी करोगे। नहीं तो जैसे हैंडमेड सेलर का फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म भी कर सकते हो आप, है ना। Yes ma'am. मैम वैसे जो मोस्टली जो साइंस फिक्शन वाली होती है उन पे किस टाइप की थ्योरीज लगती है मैम? उसमें क्योंकि फ्यूचरिस्टिक होता है, जो भी साइंस फिक्शन है ना, फ्यूचरिस्टिक एजेंडा, मतलब फ्यूचर की बाट करते हैं, आई रोबो की बात करें या किसी की भी बात करते हैं तो उनकी जो सेटिंग होती है ना वो फ्यूचर में होती है ना। तो या तो वो यूटोपियन वर्ल्ड रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टोपियन। अगर आप 1984 देखो या ब्रेव न्यू वर्ल्ड देखो, पढ़ा है ना आपने ब्रेव न्यू वर्ल्ड? Yes ma'am. है ना, तो आप देखो उसमें वो फ्यूचर, इस तरह के फ्यूचर की बात करता है जिसमें टेक्नोलॉजी और साइंस के इंटरवेंशन से बहुत ही बुरी तरह की सोसाइटी हमारे सामने आती है ना, कि बहुत ही मॉल इफेक्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन ही टॉक्स अबाउट, तो डिस्टोपियन है Yes, उसका जो वर्ल्ड व्यू है। तो Yes, यूजुअली इसी तरह से हम इसी एंगल से देखते हैं कि कैसे किस तरह का फ्यूचर दिस पर्टिकुलर ऑथर इज इन्विजनिंग, है ना, किस तरह के कैरेक्टर्स वो क्रिएट कर रहा है या किस तरह की सोसाइटी
को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, किस तरह की वैल्यूज़ हैं उस सोसाइटी में। वंस यू डिसाइड द टेक्स्ट देन आई कैन टेल मोर कि वो ऑथर Yes, ने ma'am. क्या क्या ऐसी चीज़ है उस टेक्स्ट में जो कि ज़्यादा हमें करती है। जैसे एक मैंने मूवी देखी थी शी, आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ इट और नॉट। उसमें दिस मैन फॉल्स इन लव विद, जैसे हमारे एप्पल में देयर इज दिस थिंग कॉल्ड सीरी, है ना। तो Yes, आर्टिफिशियल ma'am. इंटेलिजेंस की बात हो रही है, तो उसमें दिस फीमेल वॉइस ही फॉल्स इन लव विद इट, and the voice also falls in love with this character. But later when in the end of the movie he realizes that this particular voice or artificial technology, whatever it is, feels the same about so many, like millions of people, you know। तो टेक्नोलॉजी में जब वो उसको इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आती है रोबोज में, तो वो किस तरह की सोसाइटी होगी और ह्यूमन इमोशंस किस तरह से, इसको ना हम पोस्ट ह्यूमन टर्न है एक इसके लिए, जो क्रिटिसिज्म जैसे फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है ना, एक इसी तरह से Yes, पोस्ट ma'am. ह्यूमन टर्न बोलते हैं हम, कि पोस्ट ह्यूमन एक सोसाइटी की तरफ वी आर लीडिंग। तो किस तरह की सोसाइटी वो होगी, ह्यूमंस किस तरह के होंगे उसमें, है ना। तो इस तरह की कंसोलो फिलोसॉफिकल सा बन जाएगा, पर इंटरेस्टिंग रहेगा, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट वी Yes, हैव ma'am. द स्नेक। द स्नेक, आर यू देयर? Yes, ma'am. हाँ Hi. जी, आप बताओ। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। मैम एक्चुअली मैंने अभी सुना आपका सारा जो आप बता रहे हो। मैंने इस वे में सोचा ही नहीं था, अभी मतलब एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं था कि इस वे से जाना है। तो आई थिंक आई विल टेक अ डे और टू टू थिंक मोर अबाउट इट कि क्या मैं चूज कर सकती हूँ। आप किस बैकग्राउंड से आते हो, कहाँ पे रहते हो? मैम आई हैव मास्टर्स इन केमिस्ट्री ऑलरेडी। सो मतलब मुझे इसके बारे में थोड़ी नॉलेज है मेरी फ्यूचर के बारे में, तो अब मैं थोड़ा यू हैव डन योर मास्टर्स इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। अच्छा, तो आप भी कोई साइंस फिक्शन का कोई टेक्स्ट, या फिर आप ना एक इको क्रिटिसिज्म है एक अप्रोच, उसके बारे में पढ़ो, ठीक है, जिसमें हम इन्वायरमेंट की जो डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं, एंड वेयर वी टॉक अबाउट हाउ मैन हैज़ बिकम द सेंटर ऑफ द अर्थ, and eco-critical this theory, it says that nature is the center of the earth, and how man is destroying nature, है ना। तो जैसे हमने एटवुड की बात की है, तो है ना, उसकी उसकी भी काफ़ी सारी राइटिंग्स हैं जिसमें यू फाइंड दिस काइंड ऑफ कंसर्न। वन सेकेंड। Okay. Okay, it was not being recorded. Yeah. All right. So you think of something of that sort. ठीक है, but don't take very long. You have 2 days time, and then you will let me know. Okay. Definitely. Robin, are you there? Thank you. Robin? Hello. Yes, ma'am. हाँ जी रॉबिन, आपने क्या सोचा है अपने टॉपिक के बारे में? मैम टॉपिक के रिलेटेड पूछना था कि समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा चूज करें। आप मुझे बताओ, आप क्या करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो? मैम मैंने तो आर्ट्स की बीए की थी और अभी मैम मैंने टॉपिक सोचा था कि जीबी शॉ में कोई थ्योरी लगा के रोमांटिसिज्म की कुछ। जीबी शाह का कौन सा पढ़ा हुआ है आपने टेक्स्ट? मैम अभी उसके दो पोएम्स और पोइट्री पढ़ी थी जीबी शॉ की। और जीबी शॉ ड्रामेटिस्ट नहीं है?
No, ma'am. Nazim Ezekiel. Sorry, ma'am. Nazim Ezekiel, ma'am. हाँ, निज़्म इज़ेकियल ठीक है। तो उसकी उसकी पोएट्री में कौन से एंगल से यू वांट टू स्टडी? आप Ma'am, कहाँ से बिलॉन्ग करते हो? कहाँ से बिलॉन्ग करते हो मुझे ये बताओ? ma'am, Ludhiana. लुधियाना? Yeah. आपको आपको पता है ना आप कोई पंजाबी नॉवल भी ले सकते हो, लाइक जो Yeah. ट्रांसलेट हो चुका हो इंग्लिश में, ठीक है? जी, जी, ma'am. तो आप वर्किंग हो या आप स्टूडेंट हो? Ma'am, student. ठीक है, तो यू हैव एम्पल टाइम, आप ना कोई ऐसे कर सकते हो, जैसे पंजाबी में तो बहुत सारी फीमेल ऑथर जैसे अमृता प्रीतम है ना, दिलीप कौर टिवाना है। आप जैसे उन दोनों की कुछ शॉर्ट स्टोरीज ले लो या दोनों का एक एक नॉवल ले लो, उसमें आप उनकी कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो कि किस तरह से दे रिप्रेजेंट वुमेन। Yes, ma'am. ठीक है, ये आपने काम करना है। यू हैव 2 days टाइम, फिर आप मुझे बताओगे कि आपने क्या सेलेक्ट किया है। ठीक Okay, है, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. सुरभि, सुरभि आर यू देयर? तबलीन, Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। Hope I'm audible. हाँ जी, यू आर ऑडिबल। हैव यू डिसाइडेड योर Okay. टॉपिक? No, ma'am. I'm really confused because I'm not quite well versed with the texts. Actually, I was always keen in literature, but I've done my bachelor's in microbiology. And as I told you, we did in high school, so that was the one that I was well versed with. And there are some novels that I'm quite well versed with, and that I told you, but there's one You know, novel by. there is this novel by Siddharth Mukherjee, The Gene. Are you aware of it? Okay, ma'am. No, ma'am, I'm not. I'm sorry. Though it's a long text. Actually, Yeah. okay. I've been more into like historical kind of novels, and the one I'm quite reading, now reading is The White Lovers by William Dalrymple. That is a love affair between a white Mughal and the Indian princess. So maybe I can get something out of it, or some other literature text if you want me to. I will research more because I just couldn't get some time due to work. Yeah, if you're, since you told me that you have studied microbiology, in that case, Yes, I ma'am. actually read this novel 2 years back, The Gene by Siddharth Mukherjee. He talks about how madness kind of, traveled in his family gene and how the kind of family was affected by it. Maybe like if you are Okay. interested, you can take up, and then we can see like from which angle we can study. Like once you go through it, if you have time and if your reading speed is good, because this is quite a bulky text. So Okay, ma'am. if you don't find it interesting, in that case, I'll tell you something. I mean, if you are more interested in historical fiction, then I have other things in mind. Hmm? तो आप पहले Okay, यू ma'am. लुक एट दैट टेक्स्ट, आज गूगल करना, उसको देखना, द Sure, जीन, ma'am. ठीक है? Okay, और ma'am. Okay, हम ma'am. उस पे कुछ अच्छा सा करेंगे। मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु हैव जॉइन्ड दे आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, और True, ma'am. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो हम एक पोस्ट ह्यूमन टर्न के बारे में आप सब लोग पढ़ सकते हो, दोज हु आर इंटरेस्ट, हु आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड एंड दे आर मोर इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग, क्योंकि आप हाँ, रसनीक, इसके बाद आप बात कर सकते हो। तो आप कुछ उसी तरह के उसी तरह के एंगल से चीज़ों को देखते आ रहे हो, उसी तरह से समझते हो, पर लिटरेचर में उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी है, दिस विल मेक एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, है ना? Like after Yes, the ma'am. intervention of science and technology, what kind of society we have become, post-human turn we call it. Like we are not humans anymore. Technology has become an extension of humans.
Mobile phone That is is an very true. extension of our body. We cannot think our life like without a cell Hmm. phone, or without a laptop or without a television. Very So true. then you have this critic called Marshall McLuhan, whose text medium is the message is there. You have Raymond William, who has talked about technology and culture, and how technology has kind of influenced our culture. And a PhD is on this subject, interestingly. Okay. So this Okay, ma'am. this can make an interesting research. ठीक है, तो आप Sure. ये भी एक तरह का साइंस फिक्शन ही है, द जीन। Mm-hmm. तो Mm-hmm. जिसमें द राइटर हिमसेल्फ इज अ डॉक्टर, यू नो and Okay. but this is a wonderful text. You can go through it, and if you don't find it interesting, we can give you some other topic. ठीक है, Sure, ma'am. Sure. and you I'll can just also look forward to that. browse some other text which is related to microbiology, and where you would find a number of scientists who are very good Hmm. literary writers as well. उनका कोई text लेके आप analysis कर सकते हो, you know see, Yes, why ma'am. can't Yes. you, yeah, like you can also talk about representation of doctors. Like I was talking about no representation issue. Representation तो किसी की भी हो सकती है ना? We have always Yes, been ma'am. Yes. talking about representation of women and farmer and Dalits and also blacks, but there are so many things in a society that we can talk about. ठीक है, ये कोई डरने वाली बात ही नहीं है। जो भी आप मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में आपने क्या करना है, अपने ऑथर को इंट्रोड्यूस करना है, उसके टेक्स्ट के बारे में बताना है, एंड आफ्टर दैट यू जस्ट हैव टू राइट योर रिसर्च मेथडोलॉजी, है ना, कि कौन Yes, से ma'am. एंगल से यू आर गोइंग टू लुक एट दिस टेक्स्ट। दैट इज ऑल, एंड Mm-hmm. आफ्टर दैट द चैप्टराइजेशन विल बी हेल्पिंग यू विद दैट। Okay, ma'am. ठीक है, आप To मुझे be बता very सकते honest, to be very honest, I wasn't interested in science. This was something I did because of my parents, I've always राइट। been interested in literature. So, but yes, I will look into these texts, and because obviously I have been studying microbiology, so maybe I could relate to it. I would be more proficient way. Yeah, at the end of the day it's a novel that you're going to read है ना? True, very true. And then I too did the same thing. I had opted for non-medical, and then I was like, no, I want to read literature, so I shifted later. So yeah, I can connect with you. तो Yes, ठीक ma'am. है, तपलीन, आप you start working, and within a day or Yes, two ma'am. just let me know, because we are running very late. Last year Yes, yes. my batch was something that they were the first ones to submit their dissertation, but this Oh. time because of my accident things have got little Mm-hmm. late, but I just wish that we are able to wind up things in time. So you have, all of you Sure, have ma'am. 2 days time to browse. इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि मुझे टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट ले लो, हम उस पर बना लेंगे हाँ जी, टॉपिक। ठीक है, ठीक है, बस ठीक है आपको मैम। अच्छे से वो टेक्स्ट समझ में आया होना चाहिए। ठीक है, ये बात है। ठीक है मैम। हाँ जी, ओके मैम। रसनीक, यू विश यू वांट स्पीडी टू? रिकवरी मैम। थैंक यू। Thank you so much, Tavleen. Yes, Rasneek, you can speak now. Yes, ma'am. Thank you. Ma'am, Mm-hmm. I just wanted to ask you कि आप जैसे बता रहे हो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी है और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है, तो Mm-hmm. उसमें मतलब कि जो हमारा थॉट प्रोसेस है, लाइक हम उस टॉपिक के बारे में या स्टोरी के बारे में जैसे सोचते हैं, तो वो हम खुद मतलब फ्री राइटिंग में कर सकते हैं, लाइक मतलब जो हमें समझ में आए वही वो करेंगे ना उसमें। नहीं, वो आपकी क्रिटिकल असेसमेंट है, ऑफ कोर्स। जैसे आप कह रहे हो कि जैसे फॉर एग्जांपल आप ये टेक्स्ट में दिखाना चाहते हो कि भाई इस औरत पे बहुत जुल्म हो रहा है, ठीक है, बट वट एवर यू आर सेइंग ना, यू विल हैव टू प्रोवाइड एन एविडेंस फॉर दैट। जैसे आप टेक्स्ट में से फिर कोई 2-4 लाइनें कोट करोगे जहाँ पे इस तरह की बात हुई है, ऐसे मतलब हवा में बातें नहीं करनी है। रिसर्च में होता ही ये है कि आपको कुछ भी अगर लगता है ना, तो यू विल हैव टू फाइंड अ काइंड ऑफ सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट, ईदर फ्रॉम थियरी और फ्रॉम योर सेलेक्टेड टेक्स्ट। ठीक है, जैसे आपने 1000 फेसेस ऑफ नाइट पढ़ा है इस बार, हाँ जी, थोड़ा सा है अभी ना? याद है उसमें, हाँ अभी स्टार्टिंग हाँ, में। तो उसमें जैसे वो दिखाते हैं जो मयम्मा का कैरेक्टर है
है ना, हाउ दिस वुमन इज पनिश्ड बिकॉज शी इज नॉट एबल टू बियर अ चाइल्ड, है ना, उस पे जिस तरह की वायलेंस होती है, डोमेस्टिक वायलेंस, तो आप जैसे कहोगे कि उस तरह की सोसाइटी थी उसमें ऐसे वायलेंस होती थी, तो वहाँ उसके बाद आप उस टेक्स्ट में से वो कोट करोगे वो एग्जैक्ट लाइंस, ठीक है। तो यू हैव टू, यू कैन थिंक ऑफ कोर्स ऑन योर ओन, बट यू हैव टू प्रोवाइड एन एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट और वट एवर यू आर थिंकिंग, क्यों आप ऐसा सोच रहे हो, समझ में आ रही है बात? हाँ, ठीक है। मतलब अल्टरनेटिव राइटिंग नहीं करनी है, सपोर्ट एविडेंस के साथ काम करना है। हाँ हाँ, ठीक है। सही है। या सुरभि, यू कैन टॉक टू मी नाउ। हेलो, हाँ जी सुरभि, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैं सुन रही हूँ मैं साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट हूँ। हम्म एंड मैम मैंने बहुत सारे टॉपिक्स सोचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें फेमिनिज्म भी आ रहा है एंड तो मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे कैसे लेना चाहिए। बाकी मैं इश्यूज आपको बता देती हूँ मैम। जैसे कि मैंने एक देखा था, एक हिस्ट्री के ऊपर मैम मैंने डिसाइड किया कि एक हिस्ट्री भी डिफरेंट टॉपिक होगा, जो सबसे थोड़ा ओल्ड होगा और वो मुझे किस तरह से लेना चाहिए मैम। टेक्स्ट बताओ आप पहले थोड़ा सा, कौन सा पिक किया आपने, कौन कौन से टेक्स्ट हैं आपके माइंड में? मैम the critical imagination and human work in literature, how accurate is history in various historical novels, and the 21st century feminism, मतलब growth of feminism, और the short stories in communicating themes। मैम मैंने इतने सारे टॉपिक्स सोचे हैं, तो मैम ये कैसे सिलेक्ट करूँ? नहीं, पहले आप टेक्स्ट चूज करो ना, पहले टेक्स्ट देखो कौन से टेक्स्ट पे काम करना है आपने, है ना। आपने नॉवल, आपने, हाँ नॉवल स्टार्ट किया था मैम, द्रौपदी। ओके, दैट्स गुड वन। इंडियन हम्म, मैम। उस पे पर काफ़ी काम हो चुका है मुझे लगता है ना। तो मैम मुझे वापस सिलेक्ट करना चाहिए ना मैम? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप जैसे एक द्रौपदी ले लिया, उसमें मुझे पता है फेमिनिस्ट कंसर्न्स हैं, है ना। तो आप ये कैसे कर सकते हो, जैसे एक कोई ऑथर ले सकते हो पंजाबी, जैसे पंजाबी या मराठी या कोई भी, जिसमें आपको सिमिलर काइंड ऑफ कंसर्न्स दिखें अबाउट वुमेन, तो आप इन दो फीमेल ऑथर्स का कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो इन दोनों के टेक्स्ट की, जैसे कि द्रौपदी ले लो, एक कोई और टेक्स्ट ले लो, ठीक है। मैं भी सोचूंगी कि इसके साथ कौन से टेक्स्ट का कंपैरिजन हो सकता है, एंड देन विद इन टॉपिक्स निकालूं या कम्युनिकेटिव थीम्स डालूं या फिर इस नहीं नहीं, कुछ नहीं, हिस्टोरिकल? नहीं नहीं, अब जैसे द्रौपदी अगर आपने एक पिक किया है ना, तो ये फेमिनिस्ट नॉवल है, ठीक है। तो एक हम कोई और फेमिनिस्ट नॉवल पिक करेंगे, एंड देन वी विल मेक ए कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ दीज टू टेक्स्ट, ठीक है। दोनों ऑथर्स पे एक एक चैप्टर हो जाएगा, एंड देन यू विल बी डन, easiest थिंग टू डू, राइट, है ना। एक कोई और हम देखो किसी और स्टेट की होनी चाहिए, कोई फीमेल ऑथर देखो जो फेमिनिस्ट इश्यूज पे बात करती है, ठीक है। आप भी सोचना, आई विल आल्सो थिंक ऑफ इट, एंड देन आफ्टर 2 days विल मीट अगेन। हाँ, Sure मैम। as Fancy also has designed the same thing. इट्स फाइन, हर टेक्स्ट इज डिफरेंट, वो डिफरेंट टेक्स्ट पे काम कर रही है, आप डिफरेंट पे, ऐसा नहीं। अगर 10 लोग भी फेमिनिस्ट स्टडी कर रहे हैं, फेमिनिस्ट एनालिसिस कर रहे हैं, उन 10 बच्चों के पास अगर टेक्स्ट डिफरेंट है, देन देयर इज नो इश्यू अबाउट इट, ठीक है। हाँ, देन देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु वर्कड ऑन फेमिनिज्म, हाँ, so there's no harm on working with the same theory on different text, all right. अच्छा, if there are more question you can talk to me, otherwise I'll log off, and yes Fancy. हाँ
मैम माय क्वेश्चन इज कि जैसे आपने बोला कि कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं, तो सपोजिंगली हमें 2 टेक्स्ट चाहिए कोई, तो हम उसमें सिर्फ एक इशू के रिगार्डिंग करेंगे, या जितने अगर उसमें कॉमन इश्यूज काफी सारे आ रहे हैं तो हम सबको कंपेयर कर सकते हैं, या सिर्फ एक इशू ही लेना है हमें मेन, लाइक फेमिनिस्ट लेना है तो सिर्फ फेमिनिस्ट लेना है, या नहीं, हम सारे भी ले सकते हैं। उसमें हम सिर्फ बोल देंगे क्रिटिकल एनालिसिस और बना लेंगे, हम उसका कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे थीसिस का स्कोप कितना है, हम कितना लंबा, हमें तो बहुत छोटा सा, मतलब मुझे लगता है कि हमने 17-18 पेजेस से ज़्यादा नहीं लिखना है ना, तो हमारे पास स्पेस बहुत कम है। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि हमने कौन कौन से इश्यूज़ पे फोकस करना है। ठीक है, अगर हमारे पास काफ़ी स्पेस है तो हम ज़्यादा इश्यूज़ पे भी बात कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। हम अपनी रिसर्च को थोड़ा लिमिटेड इसलिए करते हैं ताकि एक इशू पे अच्छे से फोकस कर सकें और उसको अच्छे से सिस्टमेटिकली स्टडी कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच मैम।